panel discussion of the day. Seven. The panel discussion for now is on cybersecurity, a critical block for UCBs for fearless growth. In this session, our panelists will discuss on strengthening customer loyalty, safeguarding data theft and loss, safeguarding banks' reputational damage, and safeguarding banks from regulatory cost. To begin this panel discussion, I would like to invite Mr. Yogesh Valunchkar, Director, DNS Bank, who is also the moderator of this session. Along with him, I like to invite Bhaskar Rao, CISO, Bharat Bank. Next, I would like to invite Mr. Ashok Kumar Tiwari, CISO, Vasai Vikas Cooperative Bank. I would also like to invite Mr. Madan Gopal Swamy, Chairman, Adarsh Cooperative Bank, Hyderabad. I would also request Mr. Kailash Pawar, CIO, Pune People's Cooperative Bank, to come on the stage. I would also like to invite Mr. Ronil Mehta, Director, Technical, Magnamius Systems, to be a part of this panel discussion. Lastly, I invite Mr. Jagdish Mehta, Brand Technical Specialist, Security Software, IBM India, South Asia. Welcome everyone. Please be seated. Yogesh sir, over to you. I'll get the mic. Hello. Good evening. Good evening. Yes. Actually, I am 12th player. Jasprit sir was supposed to moderate this panel, but he had a flight to catch. On Anupam's request, I am moderating this panel. Perhaps this is the last panel discussion for the day, or last and the best, we can say, because now we are discussing about cyber security. तो साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस ये ऑल ये जो दो तीन वर्ड्स है ना, नींद नहीं आती है साहब रात को, ऐसा ऐसा कुछ बहुत सारा सिनेरियोज है. और कितना कंप्लायंसेस करे, एक के बाद एक आता ही जाता है, कितना खर्चा करे. और एक ऑब्जेक्शन आता है कि हम लोग बैंक चला रहे कि हम लोग आईटी कंपनी चला रहे, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में आधा से ज़्यादा एजेंडा तो आईटी और सिक्योरिटी का ही रहता है. तो ये भी एक रियलिटी है. सो ऑल ऑन दिस ग्राउंड्स वी विल डिस्कस विथ ऑल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, उनके ओपिनियन क्या है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, उनके सजेशंस क्या है, विच विल आई एम श्योर विच विल हेल्प यू ऑल एट योर ओन लेवल्स. एंड अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो यू ऑल्सो शेयर योर क्वेरीज, योर क्वेश्चंस, विच वी विल ट्राई टू एड्रेस. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट द सेशन, जो टाइटल ये सेशन को दिया है कि फियरिंग ये जो साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस है. सो हमारा जो एक्सपोजर है, डिजिटल एक्सपोजर है बैंक का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंपेयर टू आवर डिजिटल एक्सपोजर कुछ कंप्लायंसेस सजेस्ट किए हैं, इन्फोर्स किए, वी कैन से. सो डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ द बैंक, लेवल 1, 2, 3, 4, some certain compliances are enforced by RBI to ensure कि हमारा जितना डिजिटल एक्सपोजर है वो डिजिटल एक्सपोजर का साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करे, और जो जितना भी हमारा डिजिटल एक्सपोजर है वो सिक्योर रहे. उसके लिए कुछ नॉर्म्स दिए, और उसके अराउंड जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ने हम लोग ने किया है, कर रहे हैं, उसके रिलेटेड
जो भी क्वेश्चंस है वो हम आज डिस्कस करेंगे. To welcome all the panelists and as she introduced, like we have all categories of cooperative bank geographically size wise. अभी हमारे पास मेरे बाजू में भारत बैंक के है which is one of the biggest bank, और पुणे के अपकमिंग बैंक पुणे पीपल्स बैंक है, मालाड वसई विकास बैंक है. So we have all flavors, geographies and levels of the bank, so that you know you all will relate to their questions and their approach, how they solve their challenges and how they did compliance and all. So I will like to start with Ashok sir. अशोक सर ने काफ़ी किताबें भी साइबर सिक्योरिटी पे लिखी है. सर ऐसा है कि अभी ऐसा नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी का एक बार कंप्लायंस हो गया तो मेरा काम हो गया. जैसे मैंने वाउचर पोस्ट किया तो वो सिस्टम में गया, बाद में मुझे कुछ करना नहीं है. लेकिन साइबर सिक्योरिटी का ऐसा नहीं है कि वो एक बार कंप्लायंस हो गया तो मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं है. तो इट इज़ काइंड ऑफ कल्चर दैट वी हैव टू इम्बाइब इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. हमारे बैंक में वो कल्चर एक्सेप्ट हो, अडॉप्ट हो, ऐसा एक्सेप्टेंस लाने के लिए multiple things that everybody is planning, everybody is doing. What is your experience, or what do you suggest how best banks can adopt? Because unless you adopt this culture, only compliance will not suffice the requirements. So what are your views on this? Thank you, Yogesh sir. Good evening to everyone, and I'm honored to be here. I'm honored to be here today to discuss one important topic on cybersecurity framework. I would like to share some important and best practices in cybersecurity framework, how to be implemented and how can be secured to enhance cybersecurity framework compliances day to day. जैसा कि सर ने अभी पॉइंट्स बोला कि आज के डेट में जो भी कंप्लाइंसेस है, हम लोग को ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, कुछ लोग कह रहे हैं पॉसिबल है, कुछ लोग कह रहे हैं इम्पॉसिबल है. ये कैसे करना है इसको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बोर्ड अप्रूव्ड साइबर सिक्योरिटी एक जो पॉलिसी है सब लोगों ने मोस्टली बना लिया होगा, और आरबीआई जैसा आपने से एक्सपेक्ट करती है कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, सब पॉसिबल है. और उसमें जो भी कंप्लाइंसेस हम लोग डे टू डे कर रहे हैं उसका आपका टारगेट होना चाहिए डेली. आपका जो आईटी मैनेजर है, जो सीसो है, जो एजीएम आईटी है, ये सारी जो आपके कंप्लायंस जो लीड कर रहा है जो डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन आपका जो भी इंटरनल जो आईटी स्टाफ है उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन डे टू डे होना चाहिए कि आज डेट में कंप्लायंसेस क्या क्या पेंडिंग है, उस पर आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, और रेगुलर आपका ऑडिट और जो भी बीएपीटी कंप्लायंसेस वगैरह के आपके पॉइंट्स हैं वो डे टू डे कम्युनिकेशन होने चाहिए, मैनेजमेंट में पुटअप होना चाहिए. ये सब सारी चीज़ें आपका डे टू डे होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेजर जो इशू आता है, जो चैलेंजेस आता है, वो है आपका इन पॉइंट जो सिक्योरिटी है, पैच वगैरह, जो अपडेट्स वगैरह डे टू डे आपको मॉनिटरिंग करना है. आपके फायरवॉल्स के जो ट्रैफिक्स है वो सब जो पॉलिसी आपने डिप्लॉय किया है, जो आरबीआई के अलर्ट एडवाइजरीज आ रहे हैं वो सब प्रॉपर डिप्लॉय हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है. तो ये सब सारी चीज़ें आपको डे टू डे मॉनिटरिंग करना है. ऐसा नहीं है कि जब भी आपका ऑडिट होता है तभी आपको करना है, और जब आप आरबीआई इंस्पेक्शन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मेंटेन करना है, जो बोर्ड में आपने रिव्यू किया है, जो बोर्ड में आपको रखना है, वो सब सारी चीज़ें आपका टाइम टाइम होना चाहिए, मंथली होना चाहिए. आरबीआई बोलता है क्वार्टरली आपको रिव्यू करना है, जो पोस्चर वगैरह ये सब. आपका अप्रोच आईटी डिपार्टमेंट का डे टू डे होना चाहिए और मंथली उसको आप रिव्यू करो, जिससे क्या होगा कि बोर्ड में भी मालूम पड़ेगा कि हाँ आज के डेट में स्टेटस क्या है. कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड को पता ही नहीं रहता है कि आज के डेट में बैंक का इशू क्या क्या पेंडिंग है. तो जब भी एक हम लोग वो मैटर लेके जाते हैं बोर्ड में, तो बोर्ड के लिए भी वो थोड़ा एक ये होता है कि पॉसिबल है कि नहीं है, कैसे करेंगे इसको. ये सब सारे चैलेंजेस है जो डे टू डे हम लोग को फोकस करने की ज़रूरत है. ये सर. अभी अशोक सर ने बताया कि व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू डू डेली इफ़ वी प्रिपेयर सच चेकलिस्ट. तो यहाँ पर जितने भी सीसो या आईटी कमिटी के लोग बैठे हैं, आईटी मैनेजर्स एंड ऑल, सो इफ़ वी प्रिपेयर दैट चेकलिस्ट एंड इफ़ वी फॉलो दिस रिगरसली, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डन एंड वो कल्चर फिर अपने आप बिल्ड होते जाएगा एंड दैट विल बिकम अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विल बिकम द कल्चर विच इज़ अल्टीमेट requirement, so that you know it should not look as an enforcement.
and then we can ensure that safe and secured banking to our customers. लेकिन ये इसमें जो एंटायर जो कंप्लायंस है, ये कंप्लायंस में जो सेंट्रल पॉइंट है, तो मुझे एक ऑडियंस को क्वेश्चन पूछना है, ये आपके बैंक में जितना भी ये साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस है, उसका सेंट्रल पॉइंट, हु इज द सेंट्रल पॉइंट? कैन एनीबडी आंसर? हु इज द सेंट्रल पॉइंट? ये जितना भी हम लोग कंप्लायंस कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, हु इज द पर्सन? Designation, of course we can't name because everybody is different. So what designation is the central point for all these compliances and all? Anybody would like to answer? Yes, right, CISO. So CISO is Chief Information Security Officer. So every bank has either अपने पेरोल पे है सीसो, या आपने कोई कंसल्टिंग सर्विसेज ली होगी सीसो की. सो ये जो सीसो है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर कंप्लायंस एंड इंश्योर दैट वॉट एवर आरबीआई हैज आस्क फॉर, और जो भी कंप्लायंस फ्रेमवर्क है उसको इंश्योर करे एंड उसको कंटिन्यू करे. सो ये जो सीसो का रोल है, सो आई वुड लाइक दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू one of my friend, and he is CISO of Bharat Bank, which is one of the leading cooperative bank. Sir, ये जो CISO का रोल है, can you please elaborate what is expected out of CISO and what all responsibilities he has and overall role and responsibilities kind of. गुड इवनिंग एवरीवन. ये आपने एक बहुत डिफरेंट डेंजरस सवाल पूछा है आपने मेरे से, because the role of CISO is very difficult in the cooperative segment, because the RBI has mandated so many things कि जो भी चीज़ होता है आईटी में, the CISO has to give approval at every level. It is every level from the beginning till the execution, complete level पे CISO का ही approval होता है. If I go back little further, जब हम शुरुआत करें तो आपको मालूम है आज की डेट में इंडिया का जो है, भारत का जो ट्रांजेक्शन जो है ना, दुनिया का 40% ट्रांजेक्शन विच इज़ हैपनिंग इन इंडिया. डू यू नो दैट? 40%, दुनिया का 40% ट्रांजेक्शन विच इज़ हैपनिंग इन इंडिया. उसमें क्या हुआ कि हमने जब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुए तो वी वेंट इन सो फास्ट, वी वेंट द कोऑपरेटिव बैंक, वी स्टार्टेड जंपिंग ऑन एवरी टेक्नोलॉजी. हर टेक्नोलॉजी में हमें जंप करने की शुरुआत की है. पहले मोबाइल बैंकिंग किया, IMPS किया, UPI किया. तो आज की डेट में जो ट्रांजेक्शन लेवल है, 80 to 85% ट्रांजेक्शन आर डिजिटाइज, इजंट इट? एवरी बैंक, एवरी स्मॉल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कुछ चीज़ें कोऑपरेटिव में ऐसा होता है कि हम लोग खुद नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, थर्ड पार्टी से शेयर किया. तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो आज की डेट में द वे इट इज़ द लॉग्स आर जनरेटेड इन द एनवायरनमेंट विच इज़ ह्यूज एक्चुअली. आप डिजिटल चैनल की बात कीजिए, फायरवॉल्स की बात कीजिए, सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो इस तरह से जब आप देखोगे ये लॉग है, उसको मेंटेन करना ज़्यादा जरूरी है. और उस लॉग का जो है प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसका मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है, उसकी मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कितने लॉग बनते हैं, उसमें हाई वल्नरेबल क्या है, मीडियम वल्नरेबल क्या है, ये चीज़ें आपको देखना ज़्यादा जरूरी है. और प्रॉब्लम कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा है कि आज की डेट में कितने बैंक यहाँ पे होंगे जिसके पास सीसो है? हाउ मेनी बैंक्स आर देयर? हार्डली फ्यू बैंक्स. बिकॉज जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हार्डली फ्यू बैंक्स आर देयर हु आर हैविंग सीसो. तो आरबीआई ने मैंडेट किया है कि सीसो कंपलसरी होना चाहिए, बट उसके लिए लोग भी तो चाहिए मार्केट में. हुआ देयर. अगर आप आज देखोगे जो टेक्नोलॉजी में बाहर जो सैलरी मिलती है, 50 लाख के नीचे सीसो की सैलरी नहीं है. कितने कोऑपरेटिव बैंक अफोर्ड कर पाते हैं? हमारी सीईओ की सैलरी इतनी नहीं होती जितनी सीसो की सैलरी होती है. तो जो सेंटर पॉइंट आज के अंदर जो है, इट्स अ सीसो एक्चुअली. आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट लेने के पहले से लेके प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन तक कंप्लीट प्रोसेस में जो है सीसो का रोल होता है. आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, एप्लीकेशन की प्रॉपर VAPT होना चाहिए उसके अंदर, एप्लीकेशन टेस्टिंग होना चाहिए उसके अंदर, सोर्स कोड की ऑडिट होनी चाहिए उसके अंदर. क्या होता है, हम जो मोबाइल देते हैं कस्टमर को, हमको नहीं मालूम ना कस्टमर का मोबाइल कैसा है. अगर एक वल्नरेबल भी कस्टमर के मोबाइल में रहेगा, you can understand somebody can penetrate into that and they can enter into our network and he can do anything into our network. Not only that, आप जो सोर्स कोड दिए हैं, सपोज एक सिंगल लाइन अगर आप डाल दो सोर्स कोड के अंदर, somebody can squeeze out the entire data.
इवन दैट इज पॉसिबल, पेनिट्रेशन इज पॉसिबल एट एवरी लेवल। आप मशीन की बात कीजिए, सर्वर की बात कीजिए, एट एवरी लेवल जो सिक्योरिटी लेयर्स है उसमें कंपलसरी करना जरूरी है। एंड द रोल ऑफ सीसीओ इज वेरी बिग प्लीज। ऐसा अब जहाँ तक मैं बात करूँ कि हमारे कोऑपरेटिव में क्या होता है कि जो हम लोग बैंकिंग से आते हैं, वी नॉर्मली वी डोंट गेट पीपल, तो हमने क्या करते हैं, बैंकिंग से जो आते हैं हम लोग उनको प्रमोट कर देते हैं। भाई कल से तुम आईटी देखो, कल से आरबीआई ने बोला है तो यू सीसो भी, सीसो का भी काम देख लो। दैट इज नॉट अ रोल। देखिए, सीसो इज अ स्पेसिफिक रोल विच इज डिजाइन टू सी ओनली सिक्योरिटी लेयर्स ऑफ द बैंक। आप आज की डेट में जो प्राइवेट बैंकों में, जब मैं जहाँ पे फोरम पे जाता हूँ प्राइवेट बैंकों में, जहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट अरेना होता है। आप मोबाइल बैंकिंग है उसका वैप भी आती है, आप इंटरनेट बैंकिंग लेते हैं उसमें वैप आता है, जब आप गेटवे लेवल पे आते हैं गेटवे लेवल फायरवॉल होता है, फिर आप इंटरनल फायरवॉल लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे डीएलपी सोल्यूशन आते हैं कि कोई भी डेटा बैंक से बाहर जाना नहीं चाहिए। तो सो मेनी लेयर्स आर देयर। नाउ प्रेजेंट सिनारियो में ऐसा है कि पीपल आर वर्किंग ऑन जीरो ट्रस्ट, कि कोई भी सर्वर है एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए। आरबीआई ने क्या बोला है कि मैंडेट किया है कि नेटवर्क सेगमेंटेशन करो, लेकिन अगर इंट्रूडर नेटवर्क में ही घुस गया तो उसको सारे सर्विसेज सारे सर्वर्स मिल जाते हैं, पूरा नेटवर्क उसको मिल जाता है, सारे सर्विसेज। लेकिन अगर आप उसको सेगमेंटेशन करोगे तो एक सर्वर दूसरे सर्वर से डायरेक्ट बात नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी अ लेयर इन बिटवीन टू सर्वर, सो दैट अगर इंट्रूडर अंदर भी एंटर कर जाएगा तो वो दूसरे सर्वर के साथ इंट्रूड नहीं कर पाएगा, वो बात नहीं कर पाएगा। अगर उसको दूसरे सर्वर से बात करना, अगेन ही हैज टू द एंटायर प्रोसेस। तो ये पूरा इस तरह से लेयर्स हैं, काफ़ी लेयर्स हैं, वो मैं अभी सब बता नहीं सकता। बट द रोल ऑफ सीसो इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारी बैंकों से कि एटलीस्ट वन लेयर ऑफ सिक्योरिटी डेफिनेटली होना चाहिए बैंक में। ऑल्दो आपने आउटसोर्स किया है, आरबीआई ने यहाँ तक बोला है कि आपने आउटसोर्स किया, लेकिन जिम्मेदारी बैंक की होती है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर आपने आउटसोर्स किया है तो उसने क्या किया है वो भी जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा नहीं कि हमने किसी के साथ आउटसोर्स कर लिया है, सारे पेमेंट सिस्टम वो मैनेज करता है, सिक्योरिटी वो मैनेज करता है, हम लोग सेफ है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपने आउटसोर्स भी किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो सारे सिक्योरिटी लेयर डाला है कि नहीं डाला है, रेगुलर वीएपीटी करता है कि नहीं, लेकर रेगुलर पेनिट्रेशन टेस्ट करता है कि नहीं है, सोर्स कोड ऑडिट करता है कि नहीं। ये आप लोगों को उनके पास से सारे सर्टिफिकेट्स मंगाने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि हमने आउटसोर्स कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया, आरबीआई को लिख के दे दिया। अभी आरबीआई ने ये भी बोला है कि ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई चीज़ आउटसोर्स कर दिया, नहीं, यू दिस इज द बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट डन फ्रॉम दी रेगुलेट फ्रॉम दी वेंडर्स एक्चुअली। तो बहुत सारी चीज़ें अब बात करूँगा तो काफ़ी होगा, बट इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। एंड आई रिक्वेस्ट बैंक्स टू एक्चुअली पुट some kind of security person over there. It's not a job of IT person. IT person looks after infrastructure क्योंकि उसका काम प्रोडक्ट डिप्लॉय करना है। सिक्योरिटी पर्सन जो होता है वो सिक्योरिटी लेयर्स देखता है उसके अंदर। ही इज प्योरली इनटू सिक्योरिटी। देयर आर टू डिफरेंट अरेना बेसिकली। एब्सोल्युटली। जो हम लोग बोलते हैं कि अभी सिक्योरिटी टीम जो है, जो भी आपका एक रिसोर्स होगा, दो रिसोर्स होंगे, आइडियली सर दे शुड बी नॉट रिपोर्टिंग टू सीआईओ, राइट? They should be reporting to either risk or CEO, whoever is available. If risk head is designed, then he should report to risk head, else CEO, so that maker checker जो है वो role segregate हो, and you can ensure or double check what security provisions you have made. So ये तो security हम लोग enforce और compliance करते रहेंगे, but there are upcoming threats also day in day out. कुछ नए नए डीप फेक, एआई रिलेटेड थ्रेट्स, ऐसे बहुत सारे अपकमिंग थ्रेट्स आ रहे हैं। सो आई वांट टू आस्क टू आईबीएम, मिस्टर आईबीएम, कि ये जो अपकमिंग थ्रेट्स है, सो हाउ वी कैन इंश्योर, क्योंकि आज ऐसा नहीं होता है कि आज मैंने कंप्लायंस किया तो मैं चैन की नींद लूँ। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग आई रीड इन द पेपर लाइक बिकॉज ऑफ दिस दैट हैपन एंड ऑल दोस थिंग्स। सो इन दिस चेंजिंग सिनेरियोज, हाउ यू कैन इंश्योर दैट यू हैव अ गुड स्लीप एंड नॉट फियरिंग ग्रोथ? यस, तो जैसे सर ने बोला कि नींद आता नहीं है एज अ सीसो, राइट? सो दैट्स एग्जैक्ट रीजन कि क्यों ऐसा होता है। बिकॉज हर बैंक इज अंडरगोइंग विथ कुछ ना कुछ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कोई एप्स बन रही हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। सो वाइल दैट इज हैपनिंग, आपका बहुत सारा लॉग्स जनरेट होता है। जैसे सर ने बोला, देयर आर एम्पल ऑफ लॉग्स जो प्रोसेस करने पड़ते हैं, मॉनिटर करने पड़ते हैं। So basically, it actually matters the three touch points. One is people, process, and product, right?
So people, obviously there is a shortage, but then to aid that shortage, आपको product भी वैसे choose करने हैं which helps in doing these things for you, right? जिसमें there are tools that comes and do ये efficiently कर सकता है जो processing है. तो processing करके you get a complete visibility. उसका tool का मतलब ये है कि by design आपका जो environment में क्या चल रहा है, you should get a complete visibility. और वो विजिबिलिटी कैसे मिलेगा? जब हम सब चीज सारे टूल्स को एग्रीगेट करके उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और वो मॉनिटर भी उतना एफिशिएंटली होना चाहिए यूजिंग दैट टूल, right? And that's where the tool comes into play, and the CISOs like sir would help us, letting them know कि exact problem क्या है, and we try to solve those problems for them. So what I understand from you is अगर हमारे पास proper log analysis tool हो, if we collect all the logs and if we do analysis through a proper SOC monitoring tool, so we can minimize or we can say like At least you will be able to see through कि क्या चल रहा है. आज के तारीख में what's आपको happening, any विजिबिलिटी नहीं है. abnormalities, yeah. आज आपको विजिबिलिटी नहीं है. ऐसा हो सकता है कि आप सो रहे हैं, आपको पता है कुछ नहीं हुआ है. ऐसा हो सकता है कि आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है. तो Correct. पता होना जरूरी है, और उसके लिए राइट डिटेक्शंस होने जरूरी है. Correct. वो डिटेक्शन आज की तारीख में उतने ज्यादा है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इतना ज्यादा डेटा जनरेट होता है, Correct. बिकॉज हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे टच बेस करता है, Right. एंड बिकॉज ऑफ दैट इतना सारा डेटा चर्न आउट होता है, इतना सारा वॉल्यूम प्रोसेस करने के लिए होता है. एंड दैट इज व्हाई कंपनीज लाइक IBM एंड अदर कंपनीज इन द होल सेगमेंट, वी ऑल्सो यूज AI, राइट? मे बी लिटिल डिफरेंट टॉपिक, बट वो AI का लाने का पर्पज ही ये है कि इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा को प्रोसेस ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. इंडिविजुअल बैठ के इतना सारा डेटा प्रोसेस नहीं कर पाएगा. So just quick question, since you mentioned about AI, sir, अभी resource का crunch, it's a big problem. Okay, we are not getting proper resource. So in that case, do you think AI can help? Would be cost beneficial? See, AI can get you efficiency and accuracy. Hmm. You can't say that AI will replace or backfill your human requirement. Hmm. It'll be a overstatement, right? Because अभी तक वो स्टेज आया नहीं है जहां पर सब कुछ AI कर लेगा और आप आराम से बैठेंगे. Correct. AI कैसे काम करता है वो भी आपको देखना है. Correct. So within IBM हम लोग ये भी फॉलो करते हैं कि how responsible that AI is, right? कि वो AI को सैनिटाइज किया है क्या? Is there a guard rail कि AI खुद कैसे बिहेव करे, राइट? अनलेस वो एनालाइज करके उसको एम्प्लॉय करने के पहले सैनिटाइज नहीं किया है, देन इट इज ऑफ नो यूज, एंड इट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग द एफिशिएंसी. कि जो अभी सर ने बोला मॉनिटरिंग, राइट? वो मॉनिटरिंग को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं, Correct. ताकि आपका जो मैकेनिकल टास्क है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, Mundane जिसमें मंडेन टास्क कैन बी ऑटोमेटेड, बिकॉज दैट इज लॉजिकल ऑटोमेशन, जिससे हमको जो रेगुलर टास्क के लिए बंदा नहीं चाहिए. What you need is a human brain where it really requires some analysis, Correct. which is possible, right? आगे फ्यूचर में आएगा, वो भी AI करेगा. But as we speak, the mundane task can be automated and standardized. इसलिए रात को आप कब सो पाएंगे? जब आपको पता है कि एटलीस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कोई करके रखा है, Correct. राइट? एंड दैट इज व्हेन यू से दैट ओके 5 टास्क में से 2 टास्क 3 टास्क हो गया है, बाकी 2 के लिए मे बी कल सुबह देखते हैं, Perfect. समथिंग लाइक दैट. So technology can ease. Can aid, yes, and it can can aid and help the overall situation that we are in. Yes, yes. Or just like what you mentioned rightly, that technology can definitely empower, and technology can help us for the compliance. Technology can help us diagnose in the incidents what has happened, how has happened. Sometimes if you have better technology, you can proactively detect also and stop the threat there itself. और ये सब जो हम करने हैं, ये कर रहे हैं या करना है, इसका सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी. Again, one more question to all the audience, especially all board members sitting there. वो 2019 में RBI का जो सर्कुलर आया, कॉम्प्रिहेंसिव सर्कुलर ऑन साइबर सिक्योरिटी, सो जिसमें वो मेंशन किया था, आई थिंक ऑन द वेरी फर्स्ट पेज, दैट एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ऑफ अ बैंक लाइज विथ, sorry, board, correct. And we have one board member who is also MD of a cooperative bank. So I want to understand, sir, Madan sir, ki as a board, because if the ultimate responsibility agar board ka hai, so how board look at it? Or
कैन यू डिफाइन सम चेकलिस्ट कि व्हाट, अभी यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड मेंबर बैठे हैं, सो एज अ बोर्ड मेंबर व्हाट इज माय रोल, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू और व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी? Thank you, sir, Yogesh ji. Basically, we are a bank. We accept deposits, we lend money. RBI has licensed and asked us to do banking and keep the customer's money safe. Our primary job is to keep the money safe. Customer money should be safe in the bank. Customer should not be victimized. He should not be cheated. And our infrastructure should support that. Earlier days, we used to have 10:30 to 5:30 or 3:30 banking. We used to lock the strong room, have 4 Godrej locks, have shutter lock, have another lock, and safely go home. Things have changed. Now it is 24/7. RBI RTGS is 24/7, 365 days, day and night, including on holidays, public holidays, festival holidays, any other strike or commotion, flood, everything is going on, raining. It is raining outside, but transactions are happening. Our customers are performing the transactions. Daily lakhs and millions and billions of transactions are happening. And our servers are working day and night. And our employees may be on leave. And things are to happen. Some banks have 24/7 monitoring. Some don't have, they have outsourced. Some have not been even understanding. See, CISO's role, Mr. Bhaskara was explaining. There is an IT team, there is a CISO, there is an infrastructure person. There are so many designations, compliance officer, audit officer, credit officer in the bank. But information security, before RBI gave us the circular in 2018 and 19, there was no guideline from RBI for urban banks. Whatever is being done on information security and cyber security, we were all voluntarily doing. There was a small circular that yearly once at least information security audit is to be conducted. Later it is converted into information security and cyber security audit. It was differentiated. Later a framework was defined. In the framework also the banks have been divided into level 1, level 2, level 3, level 4. The division is based on the size of the bank, the digital channels you have embraced, payment systems you are offering like mobile banking, internet banking, and also whether you have a switch operation for payment systems. Like that they have defined. And constantly we are getting not only those two circulars of 2018 and 19, we are constantly getting alerts from RBI. We are getting advisories from RBI. And periodically certain advisories are coming. And they are sharing the experiences of other banks where they lost the money. If you see the newspaper, several customers are losing money due to the mistake of the bank, and banks are losing money due to mistake of data theft or data breaching. These are all who is responsible. There was a question, who is accountable? You see, if money is lost from the bank due to a fraud, reputational loss, deposits may fall, service standards will fall, people will lose faith. So to avoid all that, we have to take all steps. So if you have to take all steps, you should give adequate budget. Budget also that we are only making 1 year annual budget. It is not 1 year annual budget. Next 5 years, if you buy a system, how long it will be? If you are buying a firewall, is it a 3 years warranty or a 5 years warranty? What is the cost of ownership for the next 5 years? Your budgets and vision on cyber security and information security should spread for next 5 years. What are the things you want to do over a period? What are the technologies you want to give?
What are the digital channels you want to give in the next 3 to 5 years, based on which you need to implement all that. Basically, I want to answer Yogesh ji, who is ultimately accountable. It is the board of directors are accountable. All the board of directors should read those circulars, have some familiarity, and then keep on reviewing every quarter the stage of implementation of those circulars. I tell you one example. In our state also, even after 4 years, some of the banks are not using domain-based email ID. They are still using Gmail, etc., for the CEO and officers of the bank. So compliance levels, though the circulars are there, compliance levels are not there. So we all need to have a relook at the circular, and all the first it should start with the chairman and the board of directors. It should percolate down and keep on educating our employees and the customers. Thank you. Right? Yeah, please. You want to add? I just wanted to tell you, see, security for bank security should not be only for the sake of compliances. One thing we should keep in mind, security is for the bank, not for the compliance purpose. The day you think कि RBI ने बोला है ये करना है, उतना ही करना है, then that is not the actually thing what you are doing it. The security has to be at base level. You should start from the base level till the upper level. सरफेस अगर आपका अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन हो जाता है, बट खाली कॉम्प्लाइंस के पर्पस पे अगर आप सिक्योरिटी करेंगे तो उसका कोई पर्पस नहीं होता है. सिक्योरिटी हैज़ टू बी फॉर द बैंक, बिकॉज आपके पास आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके क्या क्या चैनल आप दे रहे हैं, आप कौन कौन से प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हैं. सिक्योरिटी में डिपेंड ऑन दैट. आप क्लाउड कितना यूज़ करते हैं, आपका मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआई है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, खुद का डेटा सेंटर है या शेयर डेटा सेंटर है. सिक्योरिटी ये पूरा लेयर्स देख के होता है उसके अंदर. तो जब भी आप सिक्योरिटी की बात करें तो आप सिक्योरिटी बैंक के लिए कीजिए, रेगुलेटर के लिए नहीं. Correct. And as Madan sir rightly said, what are the responsibilities of the board कि जो RBI के advisories day in day out आते हैं. आज as on today मैंने compliance किया. All RBI points are compliance is done. I've done gap assessment, audit हो गया, gap assessment का report आया. So board of director ने क्या क्या ongoing करना चाहिए. So what we can conclude is like जितने भी audits होते हैं, VAPT ऑडिट हो, IS ऑडिट हो, गैप असेसमेंट ऑडिट हो, तो उसका क्लोजर रिपोर्ट, बिकॉज एज अ डायरेक्टर आई कांट गो इनटू डिटेल बिकॉज दैट इज मेरा डोमेन नहीं है वो. आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट कि वो VAPT में कौन सी वल्नरेबिलिटी ऑन है ऑफ है. बट आई के व्हाट एज अ डायरेक्टर व्हाट आई कैन डू इज VAPT का क्लोजर रिपोर्ट आया है क्या, VAPT ऑडिटर से सर्टिफिकेट आया है क्या, इतना मैं इंश्योर कर सकता हूँ. मेरे बोर्ड मीटिंग्स में इतना इनको इंश्योर कर सकता हूँ कि लास्ट बोर्ड मीटिंग के बाद कौन सी RBI की नई एडवाइजरीज आई है और वो उसका हमने कंप्लायंस किया कि नहीं. अगर इतना ये बेसिक जो चेकलिस्ट है, अगर उतना हम कंप्लायंस करें तो एज अ बोर्ड आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एड्रेस. बट ये बोर्ड लेवल का हो गया. बट अभी जो छोटे बैंक्स है, लेवल 1 लेवल 2 बैंक्स है, दे ऑल्सो हैव अ चैलेंज कि हम कहाँ से शुरू करें. सी मोस्ट ऑफ द रियलिटी ऐसे मोस्ट ऑफ द छोटे बैंक्स में कि उनके पास एक तो रिसोर्सेस नहीं है. अगर जो कंप्लायंस करने जाए उसका जो बजट है वो बजट हाई साइड है. उसके लिए कौन सा अप्रोच करे, सब्सक्रिप्शन लाइसेंस ले कि परपेचुअल लाइसेंस ले, हम लोग इन हाउस ऑन प्रीम सेटअप करें कि क्लाउड पे सेटअप करें. ये मल्टीपल चैलेंजेस छोटे बैंक्स को भी है. एंड आई एम श्योर ये छोटे बैंक के जितने IT मैनेजर्स वगैरह है दे विल रिलेट टू मी. सो आई वांट टू आस्क टू कैलाश जी कि सर ये जो बहुत सारे दुविधा में लोग हैं ना कि क्लाउड पे जाए कि ऑन प्रीम करे, सब्सक्रिप्शन लेके परपेचुअल करे, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करे, 3 साल का करे, SLA में क्या करे, हाउ डू आई इंश्योर. अभी आउटसोर्सिंग पॉलिसी आए, आउटसोर्सिंग से हाउ डू आई इंश्योर कि वेंडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें प्रॉपरली नरेट हो. सो ये सब आई एम श्योर यू आर फेसिंग दिस. सो ऑल द IT मैनेजर्स वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि ये कैसे हम करते हैं, हाउ टू इंश्योर. अब जी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सुबह से सभी पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया था. सभी जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे बैठे थे वो लेवल 3 या लेवल 4 पे थे. जो भी क्वेश्चन किया उसका कोई भी जवाब नहीं मिला उनको. अभी मैडम ने भी क्वेश्चन किया था, बहुत से क्वेश्चन आए. उनका पर्पज ये है कि साइबर सिक्योरिटी में जो लेवल 2 या 1 में कि सबसे पहले कि साइबर सिक्योरिटी में क्या करना चाहिए, या वेंडर, अभी आप बोल रहे हैं कि वेंडर का ये होना चाहिए,
सीसो ने बोला है कि साइबर सिक्योरिटी में ये लेयर होना चाहिए। सबसे पहले तो साइबर सिक्योरिटी में बैंक क्या यूज़ करती है। अभी क्या होता है कि बहुत से बैंक में आईटी पर्सन एक है कि वही इम्प्लीमेंट करता है, वही कंप्लायंस करता है। सबसे चैलेंज हर बैंक को है तो प्रॉफिट का चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है बोर्ड का, तो बोर्ड को भी साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस चाहिए। और नैपकैप हुआ या कोई एसोसिएशन हुआ, उसमें सबसे पहले बोर्ड को साइबर सिक्योरिटी का ट्रेनिंग होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, स्टाफ को होना चाहिए, आईटी पर्सन को होना चाहिए। जैसे कि हम कई जगह पे लोन कंसेशन फाइनेंस करते हैं, आज के डेट में लेवल 2 और 1 की जो भी बैंक है वो बड़ी बैंक के साथ साइबर सिक्योरिटी में कंसल्टेंट मीन्स वैसे क्या कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग, कि बहुत सी बार अभी मॉर्निंग में भी मैडम ने 2-3 क्वेश्चन पूछा है कि सीबीएस अभी सबसे बड़ी हर्डल जो है लेवल 1 और लेवल 2 की कि सीबीएस है। हर एक बैंक का सीबीएस ही प्रॉपर नहीं तो साइबर सिक्योरिटी क्या करेगा। अभी इसमें एक तो एसोसिएशन या नैपकैप में इसने लीड लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एम पैनल जैसे कि सर्टिन पे होता है, ये सर्टिन पे ये ऑडिटर है तो इनसे ही आप ऑडिट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ वेंडर है कि वेंडर का असेसमेंट होना चाहिए, उनका साइबर सिक्योरिटी पहले चेक होना चाहिए या बेसिक कंट्रोल। मॉर्निंग में मैडम ने पूछा था या दो स्टाफ ने पूछा था कि हम आरबीआई को कहते तो आरबीआई कहता है ये हमारा काम नहीं है। अभी लेवल 1 और लेवल 2 बैंक ने जाना कहाँ चाहिए, फिर ये मेरा काम नहीं वो मेरा काम नहीं, फिर वो दो बैंक का साइबर सिक्योरिटी। अभी लेवल 2 की बैंक और 1 की बैंक यूपीआई पे ऑनबोर्डिंग है। अभी यूपीआई पे ऑनबोर्डिंग है तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का जो कंट्रोल है 9, उसमें वेंडर मैनेजमेंट है, सीबीएस है, मेल सर्वर है, उसमें बाद नेटवर्क है, डेटा लीकेज है, कस्टमर है, कस्टमर प्रोटेक्शन है, उसके बाद अवेयरनेस है। अभी क्या होता है बैंक में आईटी पर्सन नहीं है, एक तो जो आईटी पर्सन है वही इम्प्लीमेंट करता है, वही साइबर सिक्योरिटी का कंप्लायंस करता है। अभी साइबर सिक्योरिटी का नियम ऐसा है कि जो इम्प्लीमेंट करता है वो साइबर सिक्योरिटी का कंप्लायंस नहीं कर सकता है। अभी बड़ी बैंक है तो बड़ी बैंक में 24 to 50 लोग हैं कि जो 2 लेयर पे काम करते हैं। एक प्रोडक्शन में काम करती है, दूसरे है कि वो सीसो के अंडर 10 लोग हैं। अभी सीसो का कहना है कि मुझे जो उन्होंने कहा है कि 50 लाख तक सैलरी, कई बैंक का 50 लाख का ईयरली प्रॉफिट नहीं। अभी इनको तो बैंकिंग में रहना है तो फिर कौन हेल्प कर सकता है। अभी ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी सुबह बोला है कि वेंडर क्या है कि कोऑपरेटिव बैंक क्या करती है, कोऑपरेटिव बैंक का काम है जैसे कोऑपरेट करना। तो कोई भी वेंडर आता है वो अच्छी बात करता है, कोई तो भी सर्कुलर आता है आरबीआई का, फिर वो बोलता है कि मैंने ये पैचेस डीएलपी का सॉफ्टवेयर आया मेरे पास, एसेट मैनेजमेंट का है। कोई भी सर्कुलर आता है वेंडर खड़ा हो जाता है कि ये हमने साइबर सिक्योरिटी के कंट्रोल नाम्स ये किया है, सॉफ्टवेयर आप परचेस करिए। एक तो वेंडर असेसमेंट, वेंडर सिलेक्शन, ये कहीं पे भी नहीं होता है। अभी जब पहले वाले सत्र में कहा था आरती मैम ने, हमें उनको छोड़ना चाहिए या उनका बैकलिस्ट करना चाहिए। अभी क्या होता है जब सेल्स होता है तो वेंडर बोलता है ये मेरे पास सब है, आफ्टर सेल्स क्या होता है बैंक का डेटा लॉक हो जाता है, वो ना डेटा देता है ना इम्प्लीमेंट होता है। अभी जब हम आरबीआई से बात करते हैं तो आरबीआई क्या कहता है, ये आपका कॉल है, हमने नहीं कहा था कि ये वेंडर से आपको करना है। आरबीआई के मुताबिक 2010 सब सीबीएस इम्प्लीमेंट है, मगर आज 2024 तक मुझे नहीं लगता है कि किसी का 100% सीबीएस इम्प्लीमेंट है। एग्जैक्टली, एंड व्हाट यू सेड लाइक टेक्नोलॉजी शेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो कि वेंडर एक बताता है एंड ही इज़ नॉट एबल टू डिलीवर, तो अगर हम लोग ये प्रैक्टिस करें कि अगर अपने पीयर बैंक्स में टेक्नोलॉजी शेयरिंग करें, गुड एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस बोथ, कि ये वेंडर से मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, ये वेंडर से बुरा एक्सपीरियंस, सो दैट विल हेल्प other banks to select to go with the right vendors, and that will help. And since we are talking about vendors, let me quickly, last question to be addressed to Magnamius, who is one of the key system integrators, or he is on the other side of the river. So how he look at it, because ये
many banks ऐसे हैं कि जिनको ना they have been misguided. Okay, good or bad intention leave it aside. लेकिन वो misguide हुए और and even after spending money they are not able to meet compliance. So what is your stake and how you are helping? Quickly you can guide. श्योर सो सर थैंक यू फॉर द ग्रेट क्वेश्चन सर कैलर सर ने आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट डाला था कि बैंक्स मिसगाइड हो जाते हैं वेंडर आ जाता है कि सर ये नए आरबीआई के कंप्लायंसेस है तो आप ये सॉल्यूशन ले लीजिए तो हम आपको कर देंगे तो सर हमारा थोड़ा एज अ मैग्नामियस राइट हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग है वेर वी फर्स्टली ऑब्वियसली आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस है जो हमारे सॉल्यूशंस डिलीवर करते हैं तो हम इंटरनली फर्स्ट ये सारा चीज़ एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इंटरनली चेक करके वी कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ ये पॉइंट है सो स्पेसिफिकली अगर ये सॉल्यूशन में ये अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है सो दैट इज़ वन चेक दैट हम इंटरनली करते हैं एंड देन आगे जब भी हम कस्टमर्स से बात करते हैं तो हम डेफिनेटली वन के हमारी ये क्रेडिबिलिटी है हमने ये इंटरनली चेक किया है एंड इट इज़ अ फुल प्रूफ सॉल्यूशन व्हाट वी आर गिविंग एंड सेकेंडली सर एज अगेन राइटली मैंशनड कि हमारे केस रेफरेंसेस हमारे खुद के या OEMs के हम डेफिनेटली पुट फॉरवर्ड करते हैं सो दैट मतलब ये जो मिसगाइडिंग या रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं बोल सकता बट डिविएशन इन इम्प्लीमेंटेशन वो ना हो सो ये हमारी फिलोसॉफी है एज अ वेंडर इन टर्म्स ऑफ हाउ वी टेक इट अप एंड आवर अप्रोच टुवर्ड्स द कस्टमर सो दैट्स समथिंग व्हाट वी डू सर Hope all vendors you have should have same strategy and they will have a customer friendly approach because that is going to Yes. help mutual vendor as well as to customer. In the interest of time we may not be able to take the questions but thank you very much for attending the and responding. Thank you very much. Thank you, dear panelists. I would request my team member to present a token of appreciation to all the panelists. I request Yogesh sir to present a token of appreciation to Mr. Bhaskar Rao, CISO, Bharat Bank. To Mr. Ashok Kumar Tiwari, CISO, Vasai Vikas Cooperative Bank. To Mr. Madan Gopal Swami, Chairman, Adarsh Cooperative Bank, Hyderabad. To Mr. Kailash Pawar, CIO, Pune People's Cooperative Bank. To Mr. Ronil Mehta, Director, Technical Magnamius Systems. To Mr. Jagdish Mehta, Brand Technical Specialist, Security Software, IBM India, South Asia. I would now request Ashish to present a token to Yogesh sir. Thank you, everyone.